Viewers, good evening. Rahul Gandhi's Congress party has surrendered in Bihar. Surrender is the word. Congress party sidelined. The Congress party snubbed and shamed by their own in this so-called Mahagathbandhan. No flashing photos of the grand poster. There's no Rahul Gandhi. That's the poster. There is only Tejashwi Yadav. No pride of place in the announcements. Not even the whisper of shared power, viewers. Just the echo of what can easily be described as humiliation ringing loud. A press conference meant to unite the India bloc against the NDA was held, but the banner had just Tejashwi Yadav's photo. Rahul Gandhi's image was missing. Do not mistake this for some oversight. This is like a slap across the face of the Congress party, and the message is that the Congress's so-called Jananayak is no more than a shadow in this alliance. Tejashwi Yadav did not even bother to give the deputy CM post to Congress party. He gave it to a smaller party than Congress. So basically, no promise for the Congress, no photo, not even a consolation prize, viewers. This is not the only problem staring at the Congress. Protests erupted in the Bihar Congress office by Congress workers who chanted "Ticket Chori." Look at the posters, "Ticket Chor." Bihar Chor, they accused the Congress Bihar in charge of selling tickets for a price. Viewers, Rahul Gandhi, the man they call a leader, has conceded not just the crown, the CM post, the prestige to Tejashwi without a fight. Why? Because deep down, even the allies see the truth. Rahul is not a vote catcher for them. He's a liability. A millstone around the neck, if you will, of any coalition daring to even dream of victory. There are no takers for Rahul Gandhi's leadership here. It's rude, but it's just the cold reality that allies like RJD view him as a deadweight, a risk too great to bear in the fight against Modi. Viewers, Rahul Gandhi is hailed as a savior in Delhi's echo chambers. He has been unable to inspire, unwilling to lead, unable to pull the lever that moves votes. This is a message for the Congress party that allies see Rahul Gandhi not as a leader but a liability. बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। हम लोगों के पास विजन है, रीजन है, ब्लूप्रिंट है, अनडाइंग पैशन है, नए सोच के हैं, सबको साथ लेके चलना है, नया बिहार बनाना है। Let's open this up. Shahzad Poonawala, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Harshvardhan Tripathi ji, Ashwini Kumar Mishra ji, leader of the Congress Party, Syed Lareb Akram, national spokesperson of the Rashtriya Janata Dal, Akshat Shonat is the spokesperson of the Jan Suraj Party, Professor Akhil Swami and Dr. Akashdeep Muni completes this panel. Ashwini ji, एक फोटो नहीं लगाया, डेप्यूटी सीएम का पोस्ट भी नहीं दिया, क्या हो गया? क्या नाराजगी है राहुल गांधी जी से? Pranesh, I sometimes feel like laughing at your questions. जब तेजस्वी जी ने खुद बोल दिया है कि राहुल गांधी को वो देश का पीएम कैंडिडेट देखते हैं, तो आपको लगता है कि पोस्टर की जरूरत है, और वो पोस्टर बहुत ही पर्पसफुली लगाया गया था बिकॉज the press conference was to announce a CM candidate, and it is very evident it was a strategic move that we will be fighting the entire election as a CM face of Tejashwi Yadav ji. So I don't understand what is this narrative you are trying to build here, or whole media is trying to build here. राहुल जी लोगों के दिल में रहते हैं, और people are going to vote for him. People are going to vote for India bloc, and people are not going to vote for this NDA, which is nations dividing alliance. चलिए अश्विनी जी, दिल में तो रहते हैं, लेकिन वो दिल में ही रहेंगे कि कभी पावर में भी आएंगे, या दिल से ही ये
काम चलेगा आगे। और आप कह रही हैं स्ट्रैटेजिक मूव है। जब राहुल गांधी जी से अगस्त में यही सवाल पूछा गया था, तब मुझे लगता है आपकी स्ट्रैटेजी तैयार नहीं थी। तब उनको यह समझ में नहीं आया कि तेजस्वी यादव जो उनके बगल में बैठे थे, उनके बारे में मैं 2 शब्द बोल दूं। हर चीज का समय होता है, सही समय होता है प्रणेश। अगर मैं आपके बर्थडे पे 2 महीने पहले विश कर दूं, विल इट बी ओके? आई डोंट थिंक सो। तो हर चीज का एक सही समय होता है चुनाव के टाइम पर। जब सही समय आया, सारी चीजें पता चल गई हैं आपको। नाउ लुक एट एनडीए, they declared Eknath Shinde before election as CM candidate and did not make him CM. Look at Nitish Kumar. I don't think they will make Nitish Kumar CM as well. Anyway, they are not coming into power, so let's not get into that. But अभी तक उनका बोल सकते हैं क्या शहजाद पूनावाला कि इनके सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार होंगे? क्योंकि अमित शाह ने तो उनको झूले की तरह, पेंडुलम की तरह झुलाया हुआ है। चलिए वो जवाब शहजाद पूनावाला से अभी ले लेंगे। आपने कहा कि दिल में रहते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस वर्कर्स आज कांग्रेस ऑफिस पहुंचे पटना में और उन्होंने कहा उनके दिल में क्या है। उन्होंने कहा टिकट चोरी हो रही है, टिकट चोर बिहार छोड़। स्ट्रेटेजिक है Pranesh, during election, everyone try to fight election. Everyone try to go for a ticket. We have internal process to allocate ticket. देखते हैं, सर्वे करते हैं, जो हमको विनिंग कैंडिडेट दिखता है उसको टिकट देते हैं. It is not possible to give everyone ticket. However, we'll speak to our cadre, we'll speak to our workers and ensure that they participate in this democratic process along with the party lines. Okay. प्रोफेसर अखिल स्वामी, अश्विनी जी कह रहे हैं राहुल गांधी दिल में बसते हैं, फोटो की जरूरत नहीं है। बोगोटा में बसते हैं। देखिए प्रणेश, मुझे नहीं पता था आप कांग्रेस के इतने सिंपैथाइजर हैं और आप चाहते हैं, जब तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि प्रधानमंत्री देश के 6 महीने के अंदर जो दोनों बैसाखियां हैं वो इंडिया गठबंधन में आ जाएंगी और मोदी जी को कहीं दूसरे देश मॉरिशस वगैरह में जाना पड़ेगा, तो जब आपको स्पष्ट है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं सोच रहा था कि प्रणेश का आज क्या मुद्दा होगा जिसको उठाएंगे। इधर उधर के मुद्दे हिंदू मुसलमान के तो आपने उठा लिए। देखिए अब आप चिंता कीजिए और शहजाद से कहिए चिंता करें, लीडर ऑपोजिशन कौन होगा आपके एनडीए की तरफ से। मुझे जो सूचना मिल रही है सूत्रों के अनुसार, वहां पे गिरिराज सिंह को लीडर ऑपोजिशन बनाने का प्रयास हो रहा है और नीतीश कुमार और जेडीयू को किनारे लगाने का प्रयास। चलिए वो तो जवाब वो बीजेपी के प्रवक्ता देंगे। मुझे ये बताइए, डेप्यूटी सीएम का पोस्ट भी कांग्रेस को नहीं मिला, वो आपसे छोटे पार्टी को दे दिया। अब आप बोलिए कि हमें सत्ता का मोह नहीं है। नहीं, आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। देखिए आपको इसी बात से समझ लेना चाहिए, छोटी सी बात आप समझिए। पिछली बार मुकेश सहनी एनडीए के साथ थे, 4% वोट उनका था, 50,000 वोट का केवल डिफरेंस था। इस बार मुकेश सहनी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। नहीं तो ये आप नहीं प्रोफेसर साहब, तो ये आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को 4% के नीचे आएगा वोट। ये तो एडमिशन है कि हमें 4% भी नहीं आएगा, इसीलिए मुकेश सहनी जी को डेप्यूटी सीएम बना रहे हैं। गणेश, इस बात की तैयारी कीजिए कि मैं तो 14 तारीख को जा रहा हूं पटना, आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। तेजस्वी यादव को जो गुलदस्ता है मैं आपके हाथ से दिलवाऊंगा और आपका परिचय भी करा दूंगा और मुकेश सहनी से भी आपकी मुलाकात करा दूंगा और राहुल गांधी से भी कहूंगा कि ये प्रणेश हैं, मुझे कार्यक्रम में बुलाते हैं और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, कोशिश करते हैं नैरेटिव ढूंढने की, मिलती नहीं है, वो पटांग नैरेटिव ढूंढ देते हैं। चलिए सर, उससे पहले राहुल गांधी जी से ये कह दीजिएगा कि जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं उनको टाइम्स नाउ पे भेज दें, उसी में बहुत कृपा होगी। अब मैं आरजेडी से पूछ लेता हूं, अकरम साहब, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, इसमें लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का फोटो इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि आरजेडी को यह डर है कि अगर राहुल गांधी का फोटो लग गया पोस्टर पे तो जो आपके सीट आ रही है, वोट जो आने वाले हैं वो चोरी ना हो जाए। नहीं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा नहीं है, और आप जो बात कह रहे हैं ये तो उनकी बात है। बिहार में ऐसे कहावत है कि चलते फिरते जब दाल में, कुछ लोग कहते हैं कि दाल में नमक कम है, जब दाल में नमक ठीक होती है तब कहते हैं कि इसमें फोड़न नहीं है, जब फोड़न रहता है तो कहते हैं कि दाल थोड़ी पतली है। तो उनका कोई जवाब नहीं है, वो ढूंढते रहे हमारे पीछे
हम क्या कर रहे हैं, कहां फोटो है, कहां नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे बिहार की यात्रा की, उनका आउटरीच आप देखिए, जमीन पर गए, लोगों से मिले, सब कुछ हुआ। और फिर राहुल गांधी जी चुनाव के दौरान इलेक्शन कैंपेन में आएंगे। इनके लोग एनडीए के बड़े बड़े सूरमा बैठे हुए हैं पटना में, मैनेज कर रहे हैं फाइल रख के, डोजियर रख कर। जहां 30 सीट मांग रहे थे मांझी जी, उनको 6 सीट दे करके सिमटा दिया गया और कहा गया। मांझी जी का विरोध आपको याद होगा, शब्द में कह रहा हूं, खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे वो वार्न कर रहे थे। अकरम साहब, मैं बस आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपने डेप्यूटी सीएम अनाउंस कर दिया तो कांग्रेस का भी एक डेप्यूटी सीएम अनाउंस कर देते। इतना भी क्यों ह्यूमिलिएट करना अपने पार्टनर को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो तो सामंजस्य का विषय है। वो उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये आपत्ति एनडीए के लोगों को क्यों हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, शहजाद पूनावाला, इफ द कांग्रेस हैज नो प्रॉब्लम्स इन सरेंडरिंग, व्हाई इज द बीजेपी अपसेट? वो उनका इंटरनल प्रॉब्लम है। गजब की स्ट्रैटेजी है। जब तेजस्वी जी को चेहरा नहीं बनाना था तब राहुल गांधी अनाउंसमेंट में थे, और जब तेजस्वी जी को चेहरा बनाना था तब राहुल गांधी ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया। क्या स्ट्रैटेजी है? चलिए, राहुल गांधी तो इंटरनेशनल नेता, उनकी तस्वीर नहीं डाल सकते, कम से कम अपने पिताजी अर्थात राष्ट्रीय अध्यक्ष की डाल देते। चलिए, कम से कम दलित जो राज्य के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनकी तस्वीर डाल देते। और तस्वीर से हमको नहीं, ये फोटो में रहे, दिल में रहे, जहां चाहे जहाँ रहे। ये पप्पू यादव मेरे नेता है क्या? पप्पू यादव किसके नेता है? पप्पू यादव की रिपोर्टिंग अथॉरिटी पप्पू सीनियर पे है। तो पप्पू यादव ने बोला है कि भाई राहुल गांधी की फोटो से वोट आएंगे। ये तेजस्वी कौन है? ये पप्पू यादव के स्टेटमेंट है। पूछ लीजिए हर्षवर्धन जी से। पॉइंट 1। पॉइंट 2, देखिए, वोट चोरी और टिकट चोरी पे तो आएंगे, पर सम्मान चोरी हो गया आज। सामान नहीं, सम्मान चोरी हो गया। मतलब पोस्टर पे भी जगह नहीं, पोजीशन में भी जगह नहीं। कांग्रेस के 4 सांसद, कांग्रेस के 60 सीट्स कंटेस्ट करने वाले, और वीआईपी 15 सीट वाली पार्टी, पर वीआईपी जिसके 0 एमपी उसको डेप्यूटी सीएम, और कांग्रेस को कुछ नहीं। चलिए ठीक है, सम्मान चोरी में भी ये खुश है, हमें क्या लेना देना। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अभी 2-3 बातें हैं कि पहले तो ये बता दीजिए कि टिकट चोरी के आरोप हम नहीं लगा रहे, वहां पे लगा रहे थे आपके नेता आफाक आलम, सिटिंग एमएलए। टिकट चोरी का आरोप तारिक अनवर, कम से कम अश्विनी जी से थोड़े पद में ऊंचे। अश्विनी जी पोस्टर लगा के बैठ जाते हैं डिबेट में, अच्छी बात है, पर तारिक अनवर जी थोड़े से और उनके एक कद ज्यादा है उनका। तारिक अनवर ने ट्वीट करके बोला है कि बॉस, अगर 100 वोट से हारने वाले व्यक्ति को टिकट नहीं मिला, 33,000 वोट से हारने वाले व्यक्ति को टिकट किसने दिया और किस कंसिडरेशन में दिया? अभी मैं कुछ देर पहले टाइम्स ऑन नवभारत, टाइम्स ऑन इंग्लिश देख रहा था, रंजीता ने स्टोरी ब्रेक की है कि मधुबनी की सीट जो है 2 करोड़ में बिकी है। तो मतलब सोचिए कि अगर टिकट बेच रहे हैं तो और क्या क्या बेच देंगे गलती से सत्ता में आएंगे। वैसे ये नौबत आने नहीं वाली है। अब हमारे पास है मिशन विजन, और इनके पास क्या है? केवल पोजीशन, एम्बिशन, कंफ्यूजन, कमीशन। और मुझे बता दीजिए, आज ये सारी चीजें अनाउंस हो गई, अश्विनी जी केवल इतना बोल दीजिए कि वीआईपी सीट, लेफ्ट की कितनी सीट है, कांग्रेस की कितनी सीट है, ये कैटेगोरिकली बता दीजिए, क्योंकि आज भी 11 सीटों पर सो कॉल्ड फ्रेंडली या डेडली फाइट चल रही है। अच्छा, डेडली फाइट में अश्विनी जी किसके लिए कैंपेन कीजिएगा? चलिए बछवाड़ा का एग्जाम्पल लेते हैं। वन लास्ट पॉइंट, बछवाड़ा में लेफ्ट भी है और कांग्रेस भी है। अश्विनी जी, इज लेफ्ट द ऑफिशियल एमजीबी, महागठबंधन या मार्काटबंधन, या इज कांग्रेस द ऑफिशियल एमजीबी? अब बस उतना जवाब दे दीजिए। प्रणेश, पहले तो आपने एक सवाल पूछा कि कांग्रेस को बोल दीजिए अपने ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन भेजें, तो उस पर पवन खेला जी ने नाविका जी को रिप्लाई भी किया है कि जिस दिन आप सवाल पूछने लगेंगे न्यूट्रल होकर के, जब तक आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन का साथ देते रहेंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा। और मैं भी आता हूं क्योंकि आपके एक ऑडियंस है जिसको एड्रेस करने आता हूं। आपको मुझे पता है आप एक पॉलिटिकल ओपिनियन बायस लेके बैठते हैं। आई एम टोटली ओके। ऐसा है नाउ जो नहीं, अब सुन तो लीजिए, ऐसे पत्थर मार के भागिए मत। जो पवन खेड़ा जी ने कहा उसका नाविका जी ने उनको जवाब दे दिया, और उस पे लोग क्या कह रहे हैं वो जरा पढ़ लीजिएगा कमेंट्स में, फिर आप समझ जाएंगे अश्विनी जी। बट जो सवाल है उसका जवाब दीजिए आप। बछवाड़ा में प्रणेश जी, आप ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? आप पहले ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार का प्रचार करेंगे? कर दिया वो चिराग पासवान एक सेकंड कर दिया है, कर रहे थे, एक सेकंड पहले उन पर आप सवाल एक सेकंड पूछ रहे हैं। I'll answer this right away. Let me answer this. डिबेट नहीं हो पाएगी। एलजेपी का ऑफिशियल हैंडल खोलिए, टुडे चिराग पासवान एट 4:30 has campaigned for a JDU कैंडिडेट।
आज ही कैंपेन किया है, खोल दीजिए चिराग पासवान का और एलजेपी का हैंडल खोल के देख लीजिए। अब मेरा सवाल का जवाब दीजिए, बछवाड़ा में कांग्रेस ऑफिशियल या कम्युनिस्ट ऑफिशियल, बताइए। मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूं। चिराग पासवान इज कैंपेनिंग फॉर जेडीयू कैंडिडेट्स ब्रदर, डोंट वरी अबाउट इट। शहजाद आप बार बार टिकट बेचने की बात कर रहे हो। आप तो एमपी एमएलए खरीद के पूरी सरकारें पलट देते हो। आपको क्या टिकट बेचने की जरूरत है, जब आपको पता है कि आप चुनाव पूरा हैक करके बैठे हुए हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे महाराष्ट्र में, सबने देखा। तो आप ये टिकट बेचने की बातें मत करो, मैं पहले भी बोल चुका हूं। नहीं अश्विनी जी, आप क्या कह रहे हैं कि बिहार में भी मैच फिक्स्ड है? ये बस ऐसे ही शो हो रहा है, लोग कैंपेन कर रहे हैं, आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि तेजस्वी हमारे सीएम डेजिग्नेट है। बिहार में जनता हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सारे उनके संगठन, केचुआ जैसी संस्थाएं हैं। इस बार जनता हमारे साथ है और जनता जब हर्षवर्धन जी, तो जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। फोटो हो ना हो, राहुल गांधी सबके दिल में बसते हैं। वो दिल नायक, जननायक, सब कुछ है। एक वाक्य केवल हर्षवर्धन जी, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान ने गोपालगंज के बैराली विधानसभा में एनडीए समर्थित जेडीयू के उम्मीदवार मंजीत सिंह जी के लिए समर्थन किया और चुनावी कैंपेनिंग की। ये लो तस्वीर के साथ। ये अभी अश्विनी जी तक पहुंचा नहीं होगा। वह हर्षवर्धन जी कैसे देखते हैं आज जो हुआ? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक सुखद स्थिति है। कम से कम जितनी गड़बड़, जितनी एक तरह से कहें कि अपना वो शब्द हिंदी में होता है कि गुड़गोबर कर लेना, गठबंधन में रहते हुए जैसे ये लोग आपस में लड़ रहे थे, उसमें ये एक बेहतर पिक्चर है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आ गए। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैसेजिंग का इतना खराब, एकदम से ही पूरी तरह से करप्ट हो गया है मैसेजिंग सिस्टम कांग्रेस का और महागठबंधन का। राहुल गांधी की तस्वीर ना होना, चलिए आप उसका कोई भी बहाना ले सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होता कि राहुल गांधी कहते हैं कि तेजस्वी यादव को हम बिहार के मुख्यमंत्री के लिए अपने गठबंधन की तरफ से आगे बढ़ा रहे हैं? क्या कोई ये कह सकता है कि इससे बेहतर तरीका हो सकता है? चलिए, ये नहीं हुआ। आप मुकेश सहनी अंतिम समय में, जिसको बिहार की बात हो रही है, तो जैसे कहा जाता है ना कि कनपट्टी में कट्टा सटा के ले लिए, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी वैसे ही तय हुई, उप मुख्यमंत्री की भी कुर्सी। खबरों में आया है कि वो आने को ही तैयार नहीं थे, तेजस्वी पहले पहुंच गए वहां जहां प्रेस वार्ता होनी थी। और जो सबसे बड़ी बात है, ये सारी पिक्चर छोड़िए, मुझे तो लगता है उस पिक्चर से आपको शुरुआत करनी चाहिए जहां से ये सरेंडर हुआ है। वो सरेंडर की पिक्चर है लालू प्रसाद यादव जी के सामने अशोक गहलोत। लेकिन उस पिक्चर से इतना बड़ा कमरा लालू जी का था, अल्लाह वरू जी की कुर्सी नहीं लग पाई। आप इसको समझिए। ठीक है, प्रवक्ता के तौर पर जिस पार्टी के साथ जो प्रवक्ता रहेगा उसको बचाव करेगा, लेकिन क्या ये बड़ी खराब स्थिति नहीं है? ऐसे गठबंधन चलता है क्या? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सामने कौन सा गठबंधन है जहां जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में मोदी और नीतीश दोनों की फोटो लगती है, भाजपा के कैंपेन मटेरियल में मोदी और नीतीश दोनों दिखते हैं। चिराग पासवान जो 2020 में नीतीश जी को हराने के लिए लड़ रहे थे, वो कह रहे हैं कि अब हमारे नेता वही हैं। अमित शाह पटना पहुंचते हैं, नीतीश जी से मिलने चले जाते हैं, और सपरिवार तेजस्वी यादव दिल्ली में होते हैं और मिल तक नहीं पाते हैं राहुल गांधी से। आप मतलब कैसे, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कांग्रेस के पास, या कैसे, कौन सा तरीका है जनता को समझाने का? ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। डॉक्टर मुनी इस पे आप प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर मुनी, क्या कांग्रेस को ऐसा लगा कि अगर राहुल गांधी का फोटो लगाएंगे तो राहुल गांधी तो पीएम बनना चाहते हैं, फोटो देख के लोगों को सीएम ना बना दे? रमेश जी, राहुल गांधी जी बिहार के चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, तेजस्वी यादव जी बनेंगे, और राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। और पहली बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि आज बीजेपी को पता ही नहीं कि ना कि अगले 5 साल तक उनका चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा अगर वो जीतेगी। वैसे तो वो जीतेगी नहीं, पर क्या उनको पता है कि कौन 5 साल तक बनेगा? क्या नीतीश कुमार जी 5 साल तक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनेंगे? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो झट से शहजाद जी रिप्लाई कर दी कि हाँ बनेंगे, पर वो रिप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको खुद को पता नहीं है। बुरी हालत ये है, असमंजस की बात यह है कि ना कि किशनगंज, अररिया, मधेपुरा और ईस्ट चंपारण देश का सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट है, और जो बिहार में है।
आपने 11 साल पहले विकास का नारा दिया था, आज तक आपका नारा मन हो नहीं पाया सही, और आज बिहार में वोट मांगने आया है। आपके तो जेडीयू के आपके अपने जो मंत्री वो अग्री नहीं कर रहे। खालिद अनवर खुद बोलते हैं कि बीजेपी के पॉलिटिक्स को हम एंडोर्स नहीं करते, नीतीश कुमार एंडोर्स नहीं करते। बता दीजिए मैं गलत हूं तो। डॉक्टर मुनी, 1 minute. Sir, between all of us here on the panel and one individual whose name is Pappu Yadav, don't you think Pappu Yadav understands the politics in Bihar, slightly more than some of us here? You know what Pappu Yadav has said? That the fight in Bihar is between Modi and Rahul. वो बोल रहे राहुल गांधी के नाम पे वोट पड़ेगा या पड़ना चाहिए। कांग्रेस क्या के सबसे प्राइमरी फेस है, वो फोटो क्यों नहीं लगाई? मोदी जी नेशनल लीडर है और राहुल गांधी जी नेशनल लीडर है। तेजस्वी जी ने खुद बता दिया कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे, तो क्यों मोदी जी? तो राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं बताया कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? तो वो तेजस्वी यादव ही नहीं, डॉक्टर मुनी, जैसे तेजस्वी जी ने बता दिया कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, तो राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं कहा कि तेजस्वी बनेंगे अगले मुख्यमंत्री? उनसे तो सवाल पूछा गया था। क्या आपको लगता नहीं है कि ना कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के मेंबर है, तो पूरे कांग्रेस पार्टी बोल चुकी है, तो आपको एक राहुल गांधी को के ट्वीट पे क्यों डिपेंड कर दे? नहीं, मैं तो ट्वीट नहीं, उन्होंने जो कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मैंने आपको सुना दिया शुरू में कि क्या कहा था उन्होंने। सीधा सवाल था, उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। But I understand your compulsion, Dr. Muni, beyond a point, how much can you defend this? It's okay. Mr. Shonak, what do you make of what happened at that press conference today? See, I completely see this press conference from the perspective that the Mahagathbandhan, which has been claiming to call the Jan Swaraj Party as the B team of the NDA, has today failed pathetically to come at the front and fight as a party, fight as a complete unit in itself, let alone living up to the spirit of team. They have pointed guns within themselves, within the members of their own coalition, let alone the competition. And interestingly, even after the great declaration of Tejaswi Yadav as the CM candidate with great pomp and show today, with no, unfortunately, the presence of Rahul Gandhi ji, who is definitely lying in the hearts of the people, they are still competing with each other on 10 seats. And how are these people going to justify it to their own candidates, to their own volunteers who are still in a state of disarray over the fragmentation which has happened in this whole coalition? This coalition is nothing but more than a state of a mockery. But Mr. Shonak, why do you think Rahul Gandhi's photo was missing? What is your assessment of this? No, definitely, because Tejaswi Yadav had made this thing clear yesterday only when... hello, is my voice going? Yeah, loud and clear, sir. Go ahead. Hello. Yes. So yesterday when the meeting was held at the house of Rahul Gandhi in front of Lalu ji, then only it was made clear that there is no scope for a deputy chief minister position for the Congress, and a smaller party like VIP will hold the position of deputy chief minister, contrary to a national party like Congress, which has so many MPs in the parliament today. Okay. So this is the bone of contention between them. Okay. Apart from this, the seats in the Mahagathbandhan now says we've declared our CM face. आप लोग भी कर दीजिए। वैकेंसी होगी तब तो डिक्लेयर करेंगे। हमारी वैकेंसी नहीं, हमारा तो सिटिंग सीएम है भाई। अब सिटिंग पीएम डिक्लेयर होगा क्या? पीएम कौन होगा नेक्स्ट? सिटिंग पीएम है, सिटिंग सीएम है, और हमने तो करके दिखाया साहब। हम बयान नहीं दे रहे। दशरथ मांझी को इन्होंने बयान दिया था, दशरथ मांझी के बेटे को, कि घर बनाएंगे। बेचारा दशरथ मांझी के बेटे गए दिल्ली में, 4 दिन तक राहुल गांधी मिले नहीं। राहुल गांधी अब दशरथ मांझी जी के बेटे के साथ जो किया वो तेजस्वी जी के साथ मत कर देना, है ना? वो कौन एक दूसरे के काटने में लगे हैं, महागठबंधन बना दिया है। दूसरी बात, हमने तो जब बड़ी पार्टी थे तब भी छोटी पार्टी को हमने सीएम बनाकर ये प्रस्तुत कर दिया है, और आज तो कोई वैकेंसी की सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, पर मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक था कि बछवाड़ा में कांग्रेस इज द ऑफिशियल या कम्युनिस्ट इज द ऑफिशियल, उसका जवाब नहीं है। दूसरी बात, आई एम वेरी हैप्पी कि आज तेजस्वी जी को डिक्लेयर किया चेहरे के रूप में। पता है क्यों? तेजस्वी जी को डिक्लेयर करना मतलब कि आज कांग्रेस ने मान लिया है कि उनका एजेंडा आरजेडी, रंगदारी, जंगलराज और दंगाई है। मतलब तेजस्वी
तेजस्वी बोल रहे हैं, सोचिए तेजस्वी और हर्षवर्धन जी, मेरी हंसी छूट पड़ी। तेजस्वी स्ट्रेट फेस के साथ बोल रहे हैं आई हैव जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। भाई अपने घर में देख ले, अपने परिवार में देख ले और अपना खुद का चार्जशीट देख ले और बताइए यूनिटी की बात कर रहे हैं। अखिल स्वामी जी कहां जाते हैं आप ये सब हिपोक्रेसी लाने? पिता और बेटे की नहीं बन रही, भाई और भाई की नहीं बन रही, भाई और बहन की नहीं बन रही, यादव समाज से एक पप्पू की तेजस्वी से नहीं बन रही, और आप यूनिटी चाह रहे हैं। सैयद पहले अकरम साहब- जनपद का समर्थन लाइए, फिर जनमत पे जाइए। सैयद अकरम, प्रनेश, मुझे थोड़ा सा वक्त ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि मैं बहुत देर से सुन रहा हूं। मैं आपसे दो बात कह रहा हूं। अभी मेरे साथी कोई पैनलिस्ट शहजाद साहब बोल रहे थे करप्शन और जंगल राज वगैरह वगैरह। इससे ज्यादा इनके पास कुछ बोलने को नहीं, अपने बारे में बोलने को नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। इस बिहार के अंदर में 20 साल हमने बिहार को दिया कि नीतीश जी और एनडीए बिहार को चला रहे थे। बिहार की स्थिति ये हो गई, ये शराब घोटाला से लेकर सृजन घोटाला, दवा घोटाला, बांध घोटाला, पेपर लीक घोटाला, बीपीएससी घोटाला, बीएसईबी घोटाला। आपको पता है बिहार एकमात्र स्टेट है जिसमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, सेक्रेटरी तमाम जेल गए। बीएसईबी बोर्ड को डिफंग करना पड़ा, आपको भंग करना पड़ा, उनके सारे लोग जेल गए। एक पेपर आप नहीं करा सकते, आपकी क्षमता नहीं है। सड़कों पर गोलीबारी हो रही है, शूट आउट हो रहा है जैसे फिल्मों में होता था। अच्छा अकरम साहब, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। आप कह रहे हैं कि करप्शन के अलावा एनडीए या बीजेपी के पास कोई और मुद्दा नहीं है। करप्शन इतना बड़ा मुद्दा है अपने आप में, तो उसको आप लोग क्यों ट्रिवियलाइज कर रहे हैं? क्या आप भूल गए राहुल गांधी जी ने जो अध्यादेश को बोला था इसको फाड़ देना चाहिए, वो किसके लिए था? नहीं, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, सॉरी पार्डन। सैयद के साथ पासवान बात कर ले। अरे पासवान सैयद को बोलेगा। हर्षवर्धन जी, आप अकरम साहब को समझा दीजिए वो अध्यादेश वाली बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो समझ जाएंगे आसानी से। नहीं, मुझे लगता है समझ अकरम जी भी रहे हैं, सिर्फ वो न समझने की कोशिश कर रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी कन्विक्टेड हैं, सजा याफ्ता है, 5 बार, और ऐसे लोग नहीं आए राजनीति में, इसके लिए अध्यादेश आया। राहुल गांधी ने उसको फाड़ा। उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त यही तो था ना कि उनको बचाने के लिए अध्यादेश लाने की कोशिश थी, राहुल जी की छवि बनानी थी। अब उसके बाद राहुल गांधी उन्हीं के साथ खड़े हैं और आप ही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के अलावा कोई मुद्दा नहीं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। नीतीश कुमार की ब्रांड वैल्यू यही है कि वो परिवारवाद नहीं करते और भ्रष्टाचार नहीं करते। तो इसी वजह से तो ये जो जंगल राज से सुशासन तक की यात्रा है, वही तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए सैयद अकरम। इस लालू करप्ट, किसका जवाब दीजिए आप? नीतीश कुमार के संरक्षण में प्रदेश में लूट मची हुई है। एस्टीमेट घोटाला सबसे बड़ा घोटाला। अरे वो घोटाला तो ठीक है, लेकिन एक घोटाले में अगर सजा हो गई है सैयद साहब, एक मिनट सैयद अकरम, देखिए आपने जो भी घोटाले जिनका अभी जिक्र किया वो ठीक है, लेकिन आप एक बात बताइए, आप ही के लॉजिक से, अगर किसी घोटाले में किसी को सजा हो चुकी है जो कि लालू प्रसाद यादव को हो चुकी है, तो इन दोनों घोटालों में ज्यादा गंभीर क्या है? घोटाले के बारे में बता रहा हूं। डीए केस में हम सुप्रीम कोर्ट से बरी होकर आए। कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी बरी होकर आए। और आप तो चाहे जिसको फ्रेम कर दे। अजीत पवार धोकर चला आया। नहीं, एक मिनट, राहुल गांधी का जो अध्यादेश था उस पर आप मत बोलिए, मुझे बस ये बता दीजिए कि अभी लालू यादव जी को कन्विक्शन है कि नहीं कोर्ट से? एक नहीं 5 बार है। सैयद अकरम साहब, लालू यादव कन्विक्टेड हैं कि नहीं करप्शन केस में? जो जाएंगे वो पाक साफ हो जाएंगे, और जो आपसे मुंह तोड़ जवाब देगा, जो आपका गिरबान पकड़ के सवाल पूछेगा, जो आपके वायदों के ऊपर सवाल पूछेगा, उसको आप फ्रेम करते हो। एजेंसी मिसयूज हो रही, एजेंसी मिसयूज हो रही है। ये पुराना इनका वही राग अलाप रहे हैं। पहली बार सुनिए सर, सैयद जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सैयद जी आपने शहजाद आंसर द क्वेश्चन। सैयद जी को शायद पता नहीं, नए नए पैनलिस्ट आए, उनको शुभकामनाएं, पर आप देख लीजिए 2013 में पहली बार कन्विक्शन हुई जब यूपीए की सरकार थी, और लालू जी 4 बार कन्विक्टेड है। और जो आईआरसीटीसी का केस अभी चल रहा है उसका भी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी लालू जी जब कांग्रेस के साथ थे तब शुरू हुआ,
और जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है उसकी इंक्वायरी ममता जी ने रेलवे मिनिस्टर के रूप में शुरू करवाई, तो ये जानकारी हासिल करके आइए। दूसरी बात, आपके ही जननायक, आपके, हमारे तो नहीं, हमारे लिए तो कर्पूरी जी है, आपके जननायक ने वो ऑर्डिनेंस फाड़ा था कि लालू जैसे लोग बाहर बैठे और विधानसभा और लोकसभा में ना जाए। प्रोफेसर स्वामी सरेंडर कर रहे हैं, क्या हुआ सर? प्रोफेसर स्वामी मुंह छिपा रहे, दोनों हाथ उठा लिया आपने, मुंह छिपा रहे। देखिए, आपके कार्यक्रम में कांग्रेस क्यों रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजती है? आप हम लोगों को म्यूट करते हैं। नहीं, शहजाद से आप 7 बार बोलने का अवसर दे चुके हैं और शहजाद 20 साल कांग्रेस में रहे हैं और 6 महीने बाद फिर कांग्रेस में आने वाले हैं और आप भी कांग्रेस के सामने झुकेंगे। आप जो है बिना बात के लिए केवल शहजाद को बोलने का टाइम दे रहे देखिए हैं, सर, हम लोगों को म्यूट करते हैं। मैं तो नहीं, ये इसका क्या मतलब है कि आप कांग्रेस के सामने झुकेंगे? आप देखिए ऑपोजिशन से कितने लोग हैं, बीजेपी का एक प्रवक्ता है। अगर कोई आप लोग ही सवाल पूछ रहे हैं भाजपा से तो किसी और से जवाब कौन देगा? डॉक्टर मुनी थोड़ी बन जाएंगे शहजाद पूनावाला। आप सवाल का जवाब दीजिए ना। बीजेपी प्रोफेसर स्वामी, आंसर माय क्वेश्चन। बीजेपी के स्पोर्ट्स पर्सन है। अरे सर, आपको का पैनल है, जर्नलिज्म कर रहे हैं, एंकरशिप कर रहे हैं, आप दलाल राजी कर रहे हैं। देखिए क्या भाषा है सर, कभी आप मुझे जेल भेज देते हैं, कभी आप मुझे दलाल बोल देते हैं। प्रोफेसर स्वामी, ये क्या करना क्या चाह रहे हैं आप? जो लोग देख रहे होंगे, वॉट यू आर सेइंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑन यू। आप जवाब अगर देना चाहते हैं तो जवाब दीजिए। हम नहीं कर रहे हैं। 7 बार आपने शहजाद को टाइम दिया है और आप हम लोगों को बुलाते हैं शहजाद की मूर्खता को सुनने के लिए। शहजाद 20 साल कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस परिवार फर्स्ट। अरे इतना तो मैं राजनीति में नहीं रहा जितना आप मुझे कांग्रेस में बता रहे हैं। रिलेशनशिप है ये, सोनिया गांधी के घर के सदस्य है और ये कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो बीजेपी को छेद कर रहे हैं अंदर से। और आप इनको 7 बार आपने टाइम दिया है और आप किसी को टाइम नहीं देते हैं। आप एंकर नहीं हैं, आप जर्नलिस्ट नहीं हैं। अच्छा सर, लालू का पहला कन्विक्शन, नो, लेट हिम स्पीक। अच्छा ठीक है, वो 8 बार हो जाएगा फिर। बोलिए सर। देखिए प्रणेश, ऐसा है, ये जो है महागठबंधन की सरकार को 200 सीटें मिलने वाली हैं और आपको अगर 40 सीटें भी ये बीजेपी को मिल जाएं और ये जेडीयू को मिल जाएं, मैं 14 तारीख को जा रहा हूं पटना। आप चाहें तो मैं तेजस्वी से आपकी मुलाकात करा दूंगा, आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। मेरी मुलाकात मत कराइए सर, मैं उनसे कहीं और मिल लूंगा, कहीं और बाहर जाएंगे इंडिया से बाहर, तो मुझे आप बोल दीजिएगा, शायद मैं एक छुट्टी ले लूं। बट प्रोफेसर स्वामी, आपने जवाब नहीं दिया। आप ये गिन रहे कि शहजाद पूनावाला ने 5 बार बोला, 7 बार बोला, राहुल गांधी को कितने बार कोर्ट से समन आए उस पर नहीं बोल रहे हैं, लालू यादव कन्विक्टेड कितने बार हैं आप उसमें नहीं बोल रहे हैं, करप्शन के केसेस कितने हैं वो नहीं बोल रहे हैं, फिर आप ये धमकी देने लगते हैं कि जेल भेज देंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। अश्विनी जी, करप्शन एक मुद्दा है कि नहीं? लालू यादव कन्विक्टेड है या नहीं? सीधा सवाल है। प्रणेश, पहले तो जो आपने बोला ना, यहाँ बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं, ऐसा नहीं है। बीजेपी के यहाँ एक प्रवक्ता है, 2 बी टीम है और 1 सी टीम है, तो टोटल 4 लोग बीजेपी के यहाँ इस पैनल में हैं। ठीक है, मैं जनसुराज को भी करेक्ट कर दूं, हम लोग उनको बी टीम नहीं बोलते, हम उनको सी टीम बोलते हैं। ठीक है, ये उनके लिए बहुत स्पेसिफिक मैंने क्लैरिफिकेशन दिया है। अब आते हैं, आपको हम बार बार क्यों क्वेश्चन करते हैं? आप बार बार पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ने आकर के तेजस्वी जी का नाम नहीं लिया सीएम कैंडिडेट के लिए। आप मुझे बताइए, मोदी जी ने अपनी पार्टी के सीएम, मैंने वो नहीं पूछा, मैं तो बोल रहा हूं लालू यादव कन्विक्टेड है या नहीं। ये आप आईपी सिंह की तरह सवाल क्यों बदल रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं अश्विनी जी कि लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड है या नहीं? कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया है। प्रणेश, आप बार बार इस सवाल डिबेट में पूछ रहे हैं कि राहुल जी जब तेजस्वी जी का नाम तेजस्वी को कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे थे तो राहुल जी क्यों नहीं आया, राहुल जी का नाम पोस्टर में क्यों नहीं है? पर आपने एक कभी सवाल पूछा आज तक कि मोदी जी ने जो है अपने कितने सीएम कैंडिडेट का नाम निकाला, नाम बताया? इनके तो चिट निकलती है। रही बात डिप्टी सीएम की, इनके 2 डिप्टी सीएम को अभी अयोध्या में इन्वाइट तक नहीं मिला सेलिब्रेशन में। ये तो इनके यहाँ डिप्टी सीएम की हालत है। और आप बार बार करप्शन 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 की बात कर रहे हैं। ऐसे इधर हाथ झाड़ दो हेमंत बिश्रमा निकल आएंगे, ऐसे झाड़ दो अजीत पवार निकल आएंगे, ऐसे झाड़ दो शुभेंदु अधिकारी निकल आएंगे। नहीं तो इनके जो नहीं, ये जो आप हाथ झाड़ रहे हैं निकलेंगे कौन से पार्टी से? निकलेंगे कौन से पार्टी से ये भी बताइए।
कौन से अलायंस से निकलेंगे अश्विनी जी? ये इतना नहीं, आप अभी भाजपा से निकलेंगे ना, लेकिन निकले कहां से थे वो? नहीं, प्रोफेसर स्वामी बोल रहे हैं शहजाद 20 साल कांग्रेस में थे, ये जिनका आपने नाम लिया, ये इनका भी बता दीजिए, उनके साथ कौन से पार्टी में थे, किसके अलायंस पार्टनर थे? ऐसे मत कीजिए। अब आपने सी टीम जिनको कहा वो जवाब देना चाहते। 1 मिनट, सब आरोप मुझ पर। यू आर द ए टीम। 1 मिनट, जन स्वराज स्पोक्स पर्सन। ये महागठबंधन नहीं, अश्विनी जी से पूछिए कि ये महागठबंधन नहीं महाठगबंधन है। आज सीएम का फेस डिक्लेयर करने के बाद भी 5 सीटों पे राजद कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ रही है, 4 सीटों पे लेफ्ट कांग्रेस के अगेंस्ट है और एक पे तो वीआईपी कांग्रेस राजद के अगेंस्ट है। तो मतलब आपका उप मुख्यमंत्री आपके मुख्यमंत्री के चेहरे के खिलाफ लड़ रहा है और आप हमको आके टीम का ज्ञान दे रहे हैं। अरे आपके कैडर में लोग सोच रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में विद इन डिफरेंशिएशन हो चुका है, वो लोग पूछ रहे हैं कि वोट चोरी की नहीं, अक्षर सोनाग जी, ये डिफरेंसेस नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। इतनी डेमोक्रेसी है कि आपस में भी ये चुनाव लड़ रहे हैं। शहजाद देखिए, क्योंकि उनको मेरे बोलने पे आपत्ति है, मैं आपको आप ही के नेता की सुनाता हूं। इतना जानता हूं, और इस देश में यदि कोई सम्मान है तो राहुल गांधी का है, और देश में नरेंद्र मोदी जी के सामने किसी को वोट लोग देंगे और किसी का रेस्पेक्ट है तो राहुल गांधी के अलावा कोई रेस्पेक्ट नहीं है, और राहुल गांधी के फेस पर ही हम बिहार जीत सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है बिहार जीतने। अब ये पप्पू यादव कौन सी टीम है भाई? ये उसको बता दो, डी टीम है। नहीं प्रोफेसर, एक लाख पूरी तो बात हो जाएगी, 8 बार हो गया। प्रोफेसर स्वामी, ये जो अभी शहजाद ने बोला, पप्पू यादव का रिएक्शन चला दिया, ये आप 8वें बार गिनेंगे या ये पप्पू यादव का माना जाएगा? देखिए, मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 15 साल पढ़ाया है और आप एक 1-to-1 प्रोग्राम कर लीजिए। ये पप्पू यादव जो बोल रहे हैं और जो मुकेश सहनी कह रहे हैं, आईपी गुप्ता जो कह रहे हैं और तेजस्वी और जो दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं, ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। एक दिन 1-to-1 डिबेट कर लीजिए। दिस इज पार्ट ऑफ सम स्ट्रेटेजी द बीजेपी इज फॉलोइंग फॉर इट। मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाता हूं। हमारे यहाँ तो नॉर्मल अलायंस है, तो हम अपने अलायंस पार्टनर को क्या बोलते हैं? घटक दल। इनके यहाँ पे अलग बोलते हैं। कांग्रेस को पटक दल, वीआईपी को लटक दल, लेफ्ट को भटक दल और जेएमएम को झटक दल। ये कहां झटक दिया जेएमएम को, जरा बताना अखिल स्वामी जी। ये जेएमएम कहां चली गई? और जेएमएम की पुलिस ने आके आपके एक प्रत्याशी को गिरफ्तार किया। अब उसमें भी मोदी जी का स्ट्रेटेजी देख लेना कुछ। और मिस्टर स्वामी, मैं जितने साल राजनीति में नहीं रहा उतने साल तो आपने मुझे कांग्रेस में डाल दिया। पर स्वामी जी, अच्छी बात है कि आप मेरे करियर को इतना ट्रैक कर रहे हैं, राहुल गांधी के करियर को ट्रैक करो ना जरा। उनका करियर कहां जा रहा है 20 साल से? नहीं, वो इतने साल तो देश में नहीं रहे जितना वो आपको राजनीति में आपने बताया। बोलिए प्रोफेसर स्वामी। देखिए शहजाद जी, ऐसा है, आपको मैं बता चुका हूं, आप फर्स्ट फैमिली कांग्रेस के रिलेशन हैं और आप 6 महीने बाद कांग्रेस बीजेपी वालों को आपसे सतर्क हो जाना चाहिए। दे शुड बी केयरफुल एंड कॉशियस अबाउट यू। यू आर ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस इन बीजेपी। आपको बीजेपी को जल्दी जल्दी आपके पद से हटा देना चाहिए। ओके, ये और एक राहुल एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीजेपी इन कांग्रेस, इतने चुनाव हरवाते आपको। अरे आप जब कांग्रेस की जब बुराई करते हैं उस समय आप कांग्रेस में थे। अखिल जी, आपको वो लास्ट थियरी अभी तक साबित नहीं हो पाया है, छोड़ दीजिए। आपको आई थिंक मुझे और आपको बी टीम में रखा था, तो आप कुछ बोलिए, मैं तो थक गया हूं हर रोज बोल के। प्रणेश, एक खबर अभी आई, आप उसको अश्विनी जी से कंफर्म करिए। हाँ, कृष्णा अल्लावरू जी को क्या इंचार्ज से हटा दिया गया क्या? यूथ कांग्रेस से। क्यों ऐसा, उनके साथ ऐसा क्यों किया गया? मतलब ऐसा अपमानजनक व्यवहार क्यों किया गया एकदम से? आज वो फ्रेम से भी एकदम बाहर किए जा रहे थे। वो कल जो है अशोक गहलोत जी ने उनको बाहर कमरे में बिठा दिया था लालू जी कहने पे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब वो तो बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता है ना। यूथ कांग्रेस का वो जो पदभार था वो लिया है, बिहार में उनके सर पे बहुत अभी भी जिम्मेदारी है। बताइए, किसी से भी चलते चुनाव में जो इस तरह की जिम्मेदारी जिसके पास हो, ऐसे कभी वापस ली जाती है क्या? कांग्रेस में हो क्या रहा है? और चूंकि अश्विनी जी हो सकता है कि डिबेट में आते हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस की हो सकता है उतनी जानकारी इनको ना हो, सिर्फ वो हंसने के लिए आते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कैसे इनको लोग देखते होंगे। सिर्फ पूरी डिबेट में हंसने के अलावा कुछ करते ही नहीं। कितना भी गंभीर विषय हो वो बस हंसने लगते हैं। अरे भाई ठीक है, आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कांग्रेस कॉमेडी हो चुकी, क्या करेंगे? लेकिन जरा सोचिए कि जो आपका इंचार्ज है, इलेक्शन इंचार्ज, जो यूथ कांग्रेस का भी इंचार्ज था, उसको हटा दिया गया। बोलिए अश्विनी जी, बोलिए।
सॉरी हर्षवर्धन जी, आप बातें ऐसी करते हैं कि हंसी आती है, हम क्या करें। आप यहां पर बैठ के हास्यास्पद बातें करेंगे तो हंसी तो आएगी। जब अमित शाह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया था तो उनकी कितनी बेइज्जती हुई थी। ये कैसी बात कर रहे हो आप? कोई लॉजिक भी है आपकी बात में? हर आदमी को नई जिम्मेदारी मिली है। मैं समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हैं अमित शाह के बारे में? आप पता नहीं उसका क्या इशू बना रहे हैं। नहीं, अमित शाह वाला एग्जाम्पल मैं समझा नहीं, एक बार फिर से बोलिए अश्विनी जी। अमित शाह पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा के नई जिम्मेदारी दी गई, तो क्या उनकी बेइज्जती हुई थी? गृह मंत्री बने, हमारे यहाँ एक पार्टी एक पद होता है भाई। पार्टी का प्रक्रिया है। अरे तो नई जिम्मेदारी मिलेगी, नई जिम्मेदारी मिलेगी। आप जो है आप पता नहीं कौन सी बात का नैरेटिव बनाते हैं। किसी व्यक्ति से अगर एक जिम्मेदारी ली जाती है तो दूसरी जिम्मेदारी दी जाती है। डेप्यूटी सीएम, मुझे लगता है जो दूसरा डेप्यूटी सीएम का पोस्ट है शायद वो अलवरू जी को शायद उसके लिए कंसीडर कर रहे हैं। पता नहीं, प्रोफेसर स्वामी भी बन सकते हैं क्योंकि ये हर बार बोलते मैं पटना जा रहा हूं, शायद इसीलिए वो एक अनाउंसमेंट नहीं हुई है आज। प्रोफेसर साहब बनेंगे आप डेप्यूटी सीएम? शहजाद को एंकर बना दीजिए, क्यों आप बैठे हुए? अरे वो छोड़ दीजिए शहजाद, आप शहजाद से ऑब्सेस्ड है सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप डेप्यूटी सीएम बनना चाहेंगे? शहजाद बोल रहे हैं, शहजाद को एंकर बना दीजिए ना। टाइम्स नाउ से कहिए उनको एंकर बना दें। वो इससे पहले एंकर थे अलग चैनल पे। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तब वो कांग्रेस में थे। चलिए प्रोफेसर स्वामी, यू नो इट्स इम्पॉसिबल टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, बट आई थैंक नहीं हो गया 8 बार, इट्स टू मच, यू मोर देन द बीजेपी इज अलाउड. I thank some of you for joining us on debate number 1, viewers. Let's quickly